है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी इन हीमोफीलिया, यानी ऑक्यूपेशनल थेरापी का इम्पोर्टेंस हीमोफीलिया के मैनेजमेंट में। हमारा स्पीकर है डॉक्टर कीर्ति पटेल, और आज हम स्टार्ट करेंगे वेलकम एड्रेस, स्वागत संदेश, विमेन्स ग्रुप ऑफ हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया के चेयरपर्सन इंदिरा नायर जी से। अभी हम यहाँ पे मंच पे बुलाएंगे इंदिरा नायर मैडम को। Good evening and a warm welcome to everyone. A warm welcome to our distinguished speaker, Dr. Kirti Patil. She is a clinical occupational therapist from KEM Hospital, Mumbai. We are blessed, madam, to have you in Mumbai. She will guide us on the importance of occupational therapy in hemophilia. We extend a warm welcome to HFI President, if he is available here, and Mr. Premrup Alwa, BPD Ramu Gadkarji, management, and all our EC members. Lastly, we welcome to all our participants to attend this webinar. Thank you. धन्यवाद इंदिरा मैम। अभी मैं बुलाऊंगी वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट रामू गडकर जी को अपना संदेश देने के लिए। Yes, thank you, Dr. Anu ma'am. Thank you so much. Respected President Prem Roop जी, सर है क्या मैम? मैं भी मोबाइल में तो नहीं देख पा रहा हूँ। तो रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट प्रेम रूप सर, रिस्पेक्टेड वुमन चेयरपर्सन मिसेस इंदिरा नायर मैम, respected our today's guest Dr. Kirti madam, respected our HFIC member Dr. Anu जी, और भी सभी इसी मेंबर्स आए तो सभी का और पार्टिसिपेंट्स का मैं रामू गडकर इस तीसरे वेबिनार में सभी का स्वागत करता हूं। तीसरा वेबिनार हम लगातार कंटिन्यू इस वेबिनार कर रहे हैं, उसका ये तीसरा वेबिनार है। और लगातार फिजियोथेरेपी करने से आपको क्या फायदे होंगे, यही आज डॉक्टर कीर्ति मैडम जो हमारे रीजन से, हमारे सिटी से, मैं उनके बहुत सारे कैंप अटेंड किया हूँ। नॉन हीमोफिलिक होने के बावजूद भी मैं उन्हीं के कहने पर जो फिजियोथेरेपी सीखा हूँ वो मैं भी करता हूँ, वो मुझे भी फायदेमंद है। हीमोफिलिक्स को तो डेफिनेटली ये फायदेमंद ही रहेगा। तो कीर्ति मैडम को भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, HFI के साथ जुड़ने के लिए। HFI ऐसे प्रोग्राम रेगुलर करते रहेगी आगे भी। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं एक बार वापस स्वागत करता हूं। और बैक टू यू डॉक्टर अनु मैम, थैंक यू सो मच यस मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू रामू जी। अभी मैं फिर से इनवाइट करूंगी इंदिरा नायर मैडम को हमारे स्पीकर डॉक्टर कीर्ति पटेल मैडम का इंट्रोडक्शन के लिए। ओवर टू यू मैम। Yeah, Dr. Kirti Patil, she is a senior occupational therapist working with a comprehensive care center for hemophilia since 2008. She has done Bachelor's of Occupational Therapy 2004 from SET GSMC and Master's in Occupational Therapy in 2008 with actual neuroscience, with adult neuroscience as an elective from GSMC Mumbai. She is involved in many awareness camps, including our Mumbai camps, CME workshops for training therapists to promote hemophilia care. She has been a great support to Mumbai chapter and many other chapters. She visits also and she gives her services. So we are very thankful to her. She is involved in many research projects of hemophilia of IHTC Mumbai. Thank you, Doctor. और धन्यवाद इंदिरा मैम, बहुत ही अच्छी इंट्रोडक्शन के लिए। अभी हम सीधे जाएंगे आज के सेशन के लिए। तो अब कीर्ति पटेल मैडम का सेशन अभी स्टार्ट होगा। ओवर टू यू कीर्ति मैम, यू कैन शेयर योर स्क्रीन नाउ। I require a help, I guess. If this is not moving.
I think you have to share this thing. This has got. Anu, you can share, no? I think Anu, you need to share because the slides are not moving from here. Okay, okay, Achha, okay. we need. One sec, I'll try again. Yeah, it is coming on. Full screen is occupied, getting occupied. Okay, Now, I suppose yeah, it's. yeah, Yeah. yeah, yeah. Okay. I'll start. Yeah. Okay. Yes, First of ma'am. all, Yes, ma'am. You may start. okay. Thank you, HFI, all the HFI members, President Sir, Women's Chairperson, Madam Indira Madam, and all the PWH family for giving me an opportunity on a Sunday evening so that you spare some time to listen to my topic. And it's very favorite topic of mine, hemophilia and exercises. So without any further ado, let's start with the topic. हिंदी में ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगी, थोड़े थोड़े इंग्लिश शब्द यहाँ वहाँ थोड़े आ सकते हैं शायद। सबसे पहले थोड़ा एक ब्रीफ अप कर लेते हैं हीमोफीलिया के बारे में, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट से बात करती हूँ तो बेसिक 4-5 चीजें जो उन्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें हीमोफीलिया का डेफिशिएंसी कौन सी है, हमें सीवियरिटी क्या है, हम फैक्टर कितना लेते हैं। काफी पेरेंट्स या काफी पीडब्ल्यूएच जो होते हैं वो समझते हैं कि हमें सेंटर में जाना है, डे केयर सेंटर में ब्लीड हुई है, फैक्टर लेना है एंड देन आवर वर्क इज डन। तो क्योंकि ये अवेयरनेस वेब सीरीज है तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, ओवरऑल जो आपको हर एक चीज के बारे में पता होनी चाहिए जब आप एक सेंटर में जाते हो और या फिर आप एक हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो आपको कुछ बेसिक चीजें आपको खुद से पता होनी चाहिए, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आइदर आप एक पेशेंट के पेरेंट हो या आप खुद हीमोफिलिक हो। तो सबसे पहले तो आप ये जानना है आपको कि हीमोफीलिया क्या है। तो एक्स लिंक्ड कोएगुलोपैथी है, 10,000 में एक आध पेशेंट, अभी फिलहाल तो इंडिया में 10,000 में एक प्रिवेलेंस है उसका। 2 प्रकार के हीमोफीलिया मेनली कॉमनली अपने हमारे ओपीडी में पाए जाते हैं, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी दैट इज हीमोफीलिया ए और फैक्टर 9 डेफिशिएंसी। 80% जो पेशेंट है हम जो हमारे सेंटर में आते हैं वो फैक्टर ए और वो भी लेस देन 1 मतलब सीवियर हीमोफिलिक के आते हैं। तो अगर आप एक डे केयर सेंटर में जाते हो, आपके नजदीक की कोई भी डे केयर सेंटर में हम आपको ब्लीड हुई है, आप एक डे केयर सेंटर में जाते हो, आइदर आप उसे हम बोलते हैं ऑन डिमांड, मतलब हमें ब्लीड हुई है, हम डे केयर सेंटर में गए, हमने फैक्टर ले लिया, या फिर आप प्रोफिलैक्सिस पे होते हो, या मतलब आपको हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार आपको फैक्टर पे रखा जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है आपको आपकी सीवियरिटी पता होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अधिकतर जो पेशेंट है माइल्ड और मॉडरेट हीमोफीलिया के जो होते हैं वो बहुत लेट या कभी शायद पहुंचते भी नहीं है डे केयर सेंटर तक। मैक्सिमम पेशेंट आने वाले होते हैं सीवियर हीमोफीलिया ए। अब जो सीवियरिटी है वो आपकी जो फर्स्ट डायग्नोस आपको होता है उसके रिपोर्ट पे लिखी जाती है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। सीवियरिटी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हम थोड़ा एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उनको प्रोफिलैक्सिस पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उनकी आने वाले जॉइंट्स कैसे होंगे, क्योंकि हमें देखा गया है कि जो सीवियर हीमोफिलिक होते हैं उनको अधिकतर ज्यादा ब्लीड्स होती है, तो उनको शायद हफ्ते में 1 बार या 2 बार हो सकती है, उनके ज्यादा करके जॉइंट्स या मसल ब्लीड होने के ज्यादा चांसेस है। मॉडरेट और माइल्ड हीमोफीलिया बहुत ज्यादा कुछ फिजिकल इंजरी होने के बाद या कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है या दांत गिरते हैं, तब जाके अगर वो डायग्नोस होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं। इसीलिए सभी को सीवियरिटी भी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद कॉमनेस्ट जॉइंट या मसल कहाँ पे होते हैं ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। कॉमन 3 जॉइंट है जिनको हम टारगेट जॉइंट बोलते हैं। तो अगर आप इस फिगर में देखोगे तो कॉमन जॉइंट है हमारे एल्बो जॉइंट मतलब कोनी, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट। और जो कॉमनेस्ट मसल है हमारा जिसमें ब्लीड हो सकती है वो हमारा फोरआर्म मसल है, मतलब ये हाथ के नीचे वाला मसल, काफ मसल मतलब एंकल के ऊपर वाला मसल, और इलियोसोअस मसल। इलियोसोअस मसल काफी हद तक ना बहुत लेट पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पेट दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन है, शायद पेट में ब्लीड हुई होगी, तो काफी टाइम इलियोसोअस ब्लीड पता ही नहीं चलती, या फिर बहुत लेट पता चलती है जब पेशेंट बिल्कुल नहीं चल पा रहा है और एकदम व्हील चेयर में या वॉकर लेकर ओपीडी में आ जाता है।
तो आपको पता होनी चाहिए कि बराबर हिप जॉइंट और एब्डोमेन जहाँ पे ज्वाइन होते हैं वहां पे एक इलियोसोअस मसल होता है जो काफी डीप होता है, और वहां पे कॉमनेस्ट ब्लीड है जहाँ हीमोफिलिक को ब्लीड हो सकती है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि हमें ब्लीड हुई है, हमें फैक्टर लेने की जरूरत है या नहीं है? तो सबसे कुछ साइंस होते हैं, एक अर्ली साइंस हम बोलते हैं और एक लेट साइंस बोलते हैं। अर्ली साइन में क्या होता है, जिस जॉइंट में या मसल में पीडब्ल्यूएच को ब्लीड होती है वहां पे एक अलग सेंसेशन होता है, कम, आइदर वहां पे थोड़ा कम समझता है या थोड़ा हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब थोड़ा भी टच करेंगे तो कुछ एक अलग सेंसेशन होता है, टिंगलिंग जैसा सेंसेशन होता है। और वहां का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो दूसरे जॉइंट के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो हम क्या करेंगे कि दोनों जॉइंट्स जो होंगे, जैसे आपने एल्बो ले लिया तो दोनों जॉइंट, दोनों बच्चे के दोनों एल्बोज को कंपेयर करना है, तो आपको समझ में आएगा कि एक जॉइंट में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब शायद उसमें ब्लीड हो सकती है। अब ये पेरेंट्स को पहले पता होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे 5-6 साल के होने तक वो खुद से आपको आके नहीं बोलने वाले कि मुझे ब्लीड हुई है, अब मुझे फैक्टर दो। जैसा जैसा बच्चा बड़ा होता है उसको समझ में आ जाती है कि अब मुझे फैक्टर लेने के लिए सेंटर जाना है, तब तक तो वो आपको बता सकेगा बाद में, पर जब तक वो बता नहीं पा रहा है, उसको खुद को ही नहीं समझ रहा है, तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब भी वो खेल के आ रहा है या स्कूल से आ रहा है तभी हम ये सारी चीजें चेक करें कि वो हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहा है क्या, वो लंगड़ के चल रहा है, उस पैर पे ज्यादा वजन नहीं दे रहा है, जॉइंट को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, या आप जब उसको नहला रहे हो या उसके कपड़े चेंज कर रहे हो तब आपको चेक करना है कि कुछ टेम्परेचर, तापमान किसी ज्वाइंट का बढ़ा हुआ है कि। जब ब्लीड बढ़ जाती है, अगर वो हमारे से स्किप हो गई, अर्ली साइन स्किप हो गया, हमें नहीं पता चला कि ब्लीड हुई है, तो वो लेट क्लिनिकल फीचर्स में चले जाते हैं। लेट मतलब क्या हो जाता है, वहां पे सूजन बढ़ने लगती है, दर्द ज्यादा होने लगता है, वहां का जो जॉइंट है, जैसे अगर कोनी हमने पकड़ी तो कोनी वो मूव नहीं कर पा रहा है, अंदर नहीं ले पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, पूरी कोनी सीधी नहीं कर पा रहा है, नीचे पालती मार के बैठ नहीं पा रहा है, चलने में उसको दिक्कत हो रही है, और ऑफकोर्स वहां पे आगे नमनेस आ जाता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स है। इसमें सबसे पहले आपको करना है, अगर ब्लीड बढ़ रही है इमीडिएटली आपको आपके नजदीक के जो डे केयर सेंटर है वहां पे जाके आपको ट्रीटमेंट लेनी है। अभी ये आज का जो टॉपिक है ये, इस पे हम ज्यादा क्यों बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब भी हमें ब्लीड होती है, हर एक ब्लीड से थोड़े थोड़े प्रमाण में हर जॉइंट में सटल चेंजेस होते रहते हैं। वो आपको शायद तभी मालूम ना पड़े, आप आ रहे हो, आप ब्लीड लेके आ रहे हो, आप फैक्टर ले रहे हो, आपको 2 दिन में रिकवरी भी मिल रही है एंड यू आर एब्सोल्युटली ओके, आप आपके काम पे लग जाते हो। पर हर एक ब्लीड में थोड़े थोड़े चेंजेस आपके जॉइंट्स में होते रहते हैं। अगर वो चेंजेस निग्लेक्ट हो रहे हैं, हम उस पर कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो साइनोवाइटिस में जा सकता है। जॉइंट साइनोवाइटिस जब हो जाता है, मतलब जो अंदर जॉइंट के अंदर जो साइनोवियम है, अगर उसमें सूजन बढ़ती है, पेन, दर्द बढ़ता है, तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में, अगर हमें कहीं भी दर्द हो रहा है तो हम लेंगे रेस्ट। रेस्ट हम तब तक लेते हैं जब तक हमें पूरी तरह से वो पेन सबसाइड नहीं होता, मतलब पूरी तरह से वो पेन जब तक कम नहीं होता है, हम हमेशा रेस्ट में रहते हैं। अब वो जो रेस्ट वाला मूवमेंट है, वो अगर एल्बो के लिए है तो हम कोनी को मोड़ के रखेंगे अंदर, अगर वो नी में है तो घुटने को मोड़ के रखेंगे, क्योंकि हम अगर सीधा करने जाते हैं तो उसमें ज्यादा दर्द बढ़ता है। अब इसके वजह से क्या होता है, हम कोई एक्टिविटी जो कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी कम हो जाती है। और जब हम एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं और वापस हमारे काम पे लगने जाते हैं और हमारा मसल उतना वीक है, तो वापस ब्लीड हो जाती है। तो एक ये चेन रिएक्शन है, इसको हमें कहीं ब्रेक करना है, और इसके लिए फैक्टर और ब्लीड और फैक्टर के बीच में हमें एक्सरसाइज करना जरूरी है। और मैं सभी हीमोफिलिक्स को हमेशा कहती हूँ कि जब आप नॉन ब्लीडिंग फेज में हो, जब आपको ब्लीड नहीं हो रही है, वो सबसे बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि ब्लीडिंग में तो आप ऑलरेडी इतने पेन में हो, आप फैक्टर ले रहे हो, रात रात आप सो नहीं रहे हो, तो उसमें तो एक्सरसाइज की हम बात कर ही नहीं रहे हैं। जब भी आप नॉन ब्लीडिंग फेज में हो तभी आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज का लाभ उठाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रोफिलैक्सिस है, एडवांस थेरेपीज आ गई है, इमिफिजुमैब आ गया, बहुत सारी ड्रग्स आ गए हैं, काफी सेंटर्स में प्रोफिलैक्सिस मिल रहा है,
फिर भी रिकरेंट ब्लीड्स क्यों हो रही है, फिर भी डिफॉर्मिटीज हो रही है, डिसेबिलिटीज अभी भी दिख रही है, क्यों? क्योंकि काफी हीमोफिलिक अभी भी एक्सरसाइज फॉलो नहीं कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, रेंज रिस्ट्रिक्शन हो रहे हैं, डिफॉर्मिटीज आ रहे हैं, किसी के पैर पूरे सीधे नहीं हो रहे, कोई ठीक से चल नहीं पा रहा है, कोई पूरे अच्छे से उसका एंकल नीचे जमीन पे टिका नहीं पा रहा है, कोई नीचे स्क्वाट करके बैठ नहीं पा रहा है। ठीक है, पेरेंट्स काफी डर जाते हैं कि वो स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, बाकी के बच्चों की वजह से उसको ब्लीड हो रही है, इसलिए स्कूल ड्रॉप आउट्स भी काफी टाइम हो जाते हैं। नॉर्मल जो बच्चे खेलने जाते हैं उसमें कभी ब्लीड ज्यादा हो रही है, ऐसे पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, तब शायद उनको जो नॉर्मल बच्चों के साथ खेलना है वो कम हो जाता है, तो वो सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, काफी हद तक हमने देखा है कि उनमें डिप्रेशन, ये चीजें भी दिख जाती है। तो इन सबको अगर एलिवेट करना है तो हमारे पास बेस्ट इलाज है कि हम रेगुलरली जॉइंट्स को मोबिलिटी करें। अब हम आज के इस वेबिनार में ये देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है एक्सरसाइज करने के। एक्सरसाइज करने के लिए जो सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं उसको प्राइस प्रोटोकॉल बोलते हैं हम। वो क्या होता है, ब्लीड जब, जैसे हमने अभी देखा कि रेड फ्लैग्स मतलब ब्लीड आती है, तब हमें कैसे समझेगा कि ये ब्लीड है और अभी हमको हेल्प लेने की जरूरत है। प्रोफिलैक्सिस और एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो, क्या काफी सेंटर्स में रेगुलर प्रोफिलैक्सिस अवेलेबल नहीं है, पर कभी कभी एक आध जॉइंट को, मसल को रेगुलरली मोबिलाइज करने के लिए प्रोफिलैक्सिस की जरूरत होती है। अगर वो उस प्रोफिलैक्सिस के साथ अगर जॉइंट को मोबिलाइज करें तो हमें और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, और कुछ डिफॉर्मिटीज है वो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव केयर टीम, क्योंकि ये शायद सारे सेंटर्स में अवेलेबल नहीं है, बट मैं इन फ्यूचर में भी हर एक डे केयर सेंटर में अगर एक हिमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, सोशल वर्कर और एक ट्रेन नर्स है, तो कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में हम ज्यादा से ज्यादा हीमोफिलिक्स को बेनिफिट दे सकते हैं। क्योंकि हीमोफिलिया की ट्रीटमेंट सिर्फ हिमेटोलॉजिस्ट या सिर्फ फैक्टर दे के नहीं होती है, ये एक टीम वर्क है, और अगर जहाँ जिस सेंटर पे ये टीम अवेलेबल होगी उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। So we are quite lucky enough कि KEM में एक बेहतरीन टीम है अंडर डॉक्टर चंद्रकला मैडम। वी हैव अ वेरी गुड ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहन जी सर, एंड वेरी गुड डे केयर सिस्टर नर्स अक्षता। अब हमें ये टारगेट जॉइंट क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। सो टारगेट जॉइंट, कोई भी जॉइंट को हम टारगेट जॉइंट कब बोलेंगे, अगर स्पेसिफिक जॉइंट में। अब हमने पहले भी देखा है कि तीन टाइप के टारगेट जॉइंट होते हैं, एक होता है हमारा नी, एक होता है एल्बो, और होता है एंकल। तो अगर उस स्पेसिफिक जॉइंट में लास्ट 6 मंथ में 3 से ज्यादा बार ब्लीड होती है उसी जॉइंट में, तो हम उसको टारगेट जॉइंट बोलते हैं। अब टारगेट जॉइंट की ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये टारगेट जॉइंट को हम स्पेसिफिक टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो वो साइनोवाइटिस में जा सकता है, और साइनोवाइटिस अनट्रीटेड जाती है तो वो आर्थ्रोपैथी में जा सकता है। तो ये स्पेसिफिक हमारे ओपीडी में जो टिपिकल पेशेंट्स आते हैं उनके पिक्चर्स बता रही हूँ। स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे रखी है ताकि आप रिलेट कर सके। ये एक एल्बो ब्लीड है, ये नी ब्लीड है, ये आप देख सकते हैं, ये एंकल ब्लीड है, ये टिपिकल थाई ब्लीड है। ठीक है, ये जो काले नीले दाग आप देख रहे हो, ठीक है, ये तो फैक्टर लेके ग्रेजुअली कम हो जाते हैं, पर इससे अगर आप देख सकते हो कि घुटने के नीचे वाला जो मसल है बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, और उसके वजह से घुटना सीधा करने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ये टिपिकल इलियोसॉस मसल है। अगर इसमें आप देखोगे जब पेशेंट बेड पे लेटा हुआ रहता है तो उसका हिप और नी मुड़ा हुआ रहता है, और जब भी वो ज्यादा सीधा करने की कोशिश करे तो उसको ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो हिप और नी को फ्लेक्शन में मतलब मुड़े हुए रखता है। ये फोरआर्म ब्लीड है। अगर आप देख सकते हो कि जब फोरआर्म में ब्लीड होती है, फोरआर्म मतलब ये वाला मसल, तो सिर्फ एल्बो तो उसका बेंड हो ही जाता है, पर उसका जो पाम होता है उसमें भी जो ये वाली मूवमेंट होती है, लिखने वाली मूवमेंट, कुछ पकड़ने वाली मूवमेंट, ग्रिप करने वाली मूवमेंट, ये सारी भी अफेक्टेड हो जाती है। और इन सब का अगर आप वक्त पे एक सेंटर पे पहुंचते हो तो फैक्टर तो डेफिनेटली आपको दिया जाएगा, बट अगर आप आपके थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हो तो ये सब कुछ हम अर्ली स्टेज में अगर आप आते हो तो ये नॉर्मलाइज हो सकता है।
ठीक है। अब आपके पास, अगर आपको पता, जैसे मैंने बोला कि 6 महीने में 3 से ज्यादा बार आपको एक स्पेसिफिक जॉइंट में ब्लीड आ रही है, तो वो टारगेट जॉइंट बन सकता है। तो आपका सवाल होगा कि क्या मैं किसी भी जॉइंट को टारगेट जॉइंट बनने से रोक सकता हूँ क्या? हाँ, आप कोई भी जॉइंट को टारगेट जॉइंट बनने से रोक सकते हो। ये काफी हद तक आपके हाथ में है। तो आप क्या कर सकते हो, जितनी जल्दी आपको ब्लीड हुई है, अगर ये आपको समझ रहा है, उतनी जल्दी से ज्यादा अगर आप जाके ट्रीटमेंट करें। जैसे आपने सेंटर में जाके इमीडिएटली फैक्टर ले लिया, आपने इमीडिएटली अच्छे से रेस्ट की, कंप्रेशन कर लिया, उसको रीब्लीड होने से रोक लिया, रेगुलरली आप उस पे कसरत कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके हम जो नॉर्मल जॉइंट है उसको टारगेट जॉइंट होने से रोक सकते हैं। पर हीमोफीलिया ए, जो सीवियर हीमोफिलिक ए है, लेस देन 1% वाले, अगर उनमें स्पॉन्टेनियस ब्लीड हो रही है, तो टारगेट जॉइंट्स को मैनेज करने के लिए शायद हमें प्रोफिलैक्सिस की जरूरत पड़ती है। जब भी टारगेट जॉइंट नहीं है आपका, मतलब टारगेट जॉइंट में ब्लीड नहीं है, और उस फेज में, मतलब नॉन ब्लीडिंग फेज में, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, तो हम आने वाली दूसरी जो नेक्स्ट ब्लीड है उसके लिए हम हमारा जॉइंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दैट उसके जो आसपास के मसल है, अगर हम नी जॉइंट को पकड़े तो उसके ऊपर के नीचे के जो मसल है उसको हम स्ट्रेंथन करके अच्छे से मेंटेन करें। तो जब नेक्स्ट ब्लीड होती है तो उसमें जो तकलीफ होती है उसको हम डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जो डिफॉर्मिटी डेवलपमेंट होने वाली है उसको भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। टारगेट जॉइंट, जैसे मैंने बोला कि जब एक्यूट एक नया फ्रेश जॉइंट है, उसमें एक पहली बार आपको ब्लीड हुई है, ठीक है, एक्यूट हीमार्थ्रोसिस बोलते हैं हम उसको। अगर वो रेगुलरली हम एक्सरसाइज करके, ऑन डिमांड फैक्टर लेके या प्रोफाइलैक्सिस लेके ट्रीट हो रहा है, तो हमने जंग वहीं पे जीत ली, मतलब हमने जॉइंट अच्छे से मैनेज कर लिया। बट अगर वो नहीं मैनेज हुआ, वो टारगेट बन गया, तो वो शायद क्रोनिक साइनोवाइटिस में जा सकता है। क्रोनिक साइनोवाइटिस की ट्रीटमेंट और थोड़ी अलग होती है। शायद सारे सेंटर्स में वो अवेलेबल नहीं है। जो जो सेंटर्स में अवेलेबल है वहां पे जाके क्रोनिक साइनोवाइटिस की ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्रोनिक साइनोवाइटिस के बारे में हम थोड़ा और बाद में बात करने वाले हैं। और क्रोनिक साइनोवाइटिस भी अगर ट्रीट नहीं हुआ तो वो ऑर्थोपैथी में जाता है। ऑर्थोपैथी मतलब आपको शायद ब्लीड भी ना हो, आपको शायद दर्द भी ना हो, पर जॉइंट एकदम टाइट हो चुका है, जॉइंट बिल्कुल मूव नहीं हो रहा है, एकदम मतलब डिफॉर्मिटी में चला गया है, और आप वो उस जॉइंट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब भी ब्लीड होती है तो हम ये सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट बोलते हैं। सर्जरी से पहले कुछ चीजें हैं जो हम मैनेज करके रेगुलरली उसको मोबिलाइज करके, या अगर हम ऑर्थोपेडिक को बताएं और उसमें कुछ इंटरवेंशंस करके हम जॉइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में हम वापस डिटेल में बात करेंगे। ये बेसिक चीज है, ये सबको समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो जैसे पहले हमने कहा कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज के साथ प्राइस जो है वो समझेंगे। प्राइस मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। पी मतलब प्रिवेंटिव, आर इज रेस्ट, आई इज आइसिंग, सी इज कंप्रेशन और ई इज एलिवेशन और एक्सरसाइज, ठीक है। रेस्ट मतलब आपको यहाँ पे जो पिक्चर में बताया रेस्ट वैसे नहीं है। तो हम पहले प्रिवेंशन की बात करेंगे। प्रिवेंशन में हम जितने हम नॉन ब्लीडिंग फेज, हमने नॉन ब्लीडिंग फेज मतलब जब आप ब्लीड नहीं कर रहे हो और तभी हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक जो होती है, मतलब ज्यादा बार बार स्क्वाटिंग नहीं करना, ओवर यूज ऑफ द हैंड नहीं करना है, ये सारी चीजें अगर हम करेंगे, या इम्पैक्टफुल जो स्पोर्ट्स होते हैं, अब जो बच्चे हैं वो कुछ 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 बच्चे फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ये सब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो ये नहीं करेंगे तो ये भी एक टाइप का प्रिवेंशन ही है। फिर जिसको एंकल ब्लीड है, अगर वो अप्रोप्रिएट फुटवेयर भी पहने चलते वक्त, अच्छे स्पोर्ट शूज जो एंकल को सपोर्ट करते हैं, अगर वो पहने, तो भी प्रिवेंशन है। फिर कुछ कुछ बच्चों को वो हेड बैंगिंग करते हैं, गिरते हैं, जो मे बी 1-2 साल के हैं और वो जो गिर रहे हैं, तो उनको एक हेड गियर भी देते हैं हम यहाँ पे, और प्रोटेक्टिव कप्स। तो इसके कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए, ये हेड गियर्स है जो हम 1 से 2 साल के बच्चों को यूज करने के लिए बोलते हैं। कभी कभी 3 साल तक के बच्चे भी इसको यूज करते हैं, सो दैट जो हेड ब्लीड होती है, हेड इंजरीज होती है, उसका इम्पैक्ट हम कम कर सके। इससे हेड ब्लीड होगी नहीं ऐसे नहीं है, बट एक ये प्रोटेक्टिव गियर है। फिर ये कुछ
हम प्रोटेक्टिव कप्स बोलते हैं, जो हम एल्बो और नी जॉइंट्स को देते हैं। ये बच्चे स्कूल में जब जाते हैं तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ऑफिस गोअर्स है ये भी अपने ऑफिस के टाइम में डेस्क पे जब बैठे हुए हैं या जब ब्लीड होती है तब रात के समय में सोते वक्त भी ऐसे टाइप के प्रोटेक्टिव कप्स है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे हमने प्राइस में सेकंड आता है आपकी रेस्ट। तो ये जो रेस्ट के लिए हम कुछ टाइप के पट्टे या स्प्लिंट्स बनाते हैं। अब स्प्लिंट्स जॉइंट में देना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमें ब्लीड होती है किसी भी स्पेसिफिक जॉइंट में, तब जॉइंट एक स्पेसिफिक पोजीशन में चला जाता है। मोस्टली एल्बो को हम ऐसे मोड़ के रखेंगे कोनी को, या नी को भी हम मोड़ के रखेंगे। हम फैक्टर ले लेते हैं, ब्लीड ठीक हो जाती है। बट जो मुड़ी हुई कोनी है या मुड़ा हुआ घुटना है वो बाद में सीधा करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जब एक्यूट ब्लीड है तभी अगर हम ऐसे पट्टे इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम जॉइंट को स्ट्रेच आउट कर सकते हैं और आने वाली जो डिफॉर्मिटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ये एल्बो में हमने पहन लिया, ये नी में पहना है, ये एल्बो में का एल्बो के लिए ऐसे आप पहन सकते हो, ठीक है। एंकल के लिए ऐसे एंकल बाइंडर्स आते हैं, वो आप पहन सकते हो। आइसिंग आइसिंग सुनने में बहुत सरल है, बहुत ही आसान है, बट काफी बच्चे या काफी पेरेंट्स गलत तरीके से कर देते हैं। काफी पेरेंट्स बच्चों को आइस पैक दे देते हैं और वहीं पे रख देते हैं, एक एक घंटा दो दो घंटा आइसिंग चला रहता है। वैसे हमें नहीं करना है। जब हम आइसिंग करते हैं आइदर हमको आइस पैक से करनी है या एक कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब्स को रखना है और वो जॉइंट पे 10 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। कीप ऑन मूविंग, एक जगह पे नहीं रखना, उसको जगह जगह पे घुमाना है और हर 2 घंटे में 10 मिनट के लिए सिर्फ आइसिंग करनी है। फिर कंप्रेशन है, जो हमने पट्टा पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया, उसके साथ जो गर्म पट्टी आती है या उसको जो क्रेप बैंडेज बोलते हैं वो पट्टे के साथ बांधा जाएगा। तो आपको रेस्ट भी मिल गई और आप जो गर्म पट्टी बांध रहे हैं उससे कंप्रेशन मिलेगा, उससे जॉइंट को भी रेस्ट मिलेगी और कंप्रेशन की वजह से सूजन उतरने में मदद भी मिलेगी। ठीक है, अभी हमको एक्सरसाइज कब स्टार्ट करना है। जैसे आज आपको ब्लीड हुई है, आप सेंटर में गए, आपने फैक्टर ले लिया, 48 आवर्स तक उसको हमको आइसिंग करना है, रेस्ट में रखना है, कंप्रेशन में करना है। जैसे ये 48 आवर्स में धीरे धीरे सूजन उतरने लगती है, पेन धीरे धीरे कम होने लगता है, वैसे ग्रेजुअली हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उस दौरान जो जॉइंट इन्वॉल्व है, समझो अगर नी या एल्बो इन्वॉल्व है तो वो जॉइंट छोड़ के बाकी के जो जॉइंट है जिसमें ब्लीड नहीं हुई है वो जॉइंट को हम कसरत करा सकते हैं। उस जॉइंट को हमें कसरत क्यों करानी है, क्योंकि जब समझो नी में, राइट नी में आपको ब्लीड हुई है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट नी में ज्यादा वजन देके उस पे चलोगे। ग्रेजुअली क्या होगा, राइट नी तो खराब हुआ है, लेफ्ट नी भी आपका इन्वॉल्व होने लगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो बाकी के अनअफेक्टेड जॉइंट है जिसमें ब्लीड नहीं हुई है उसको भी रेगुलरली एक्सरसाइज कराए। जैसे 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 आपकी पेन कम होता है वैसे वैसे उस जॉइंट को जिसमें ब्लीड हुई है ग्रेजुअल स्लोली मूवमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी है। कोई भी एक्सरसाइज से अगर आपको लगता है कि ब्लीड बढ़ रही है, पेन बढ़ रहा है, इमीडिएटली आपको बंद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि काफी पेशेंट एक ही बार आते हैं, फैक्टर लेते हैं, एक्सरसाइज सीखते हैं, निकल जाते हैं और फिर वही एक्सरसाइज वो कंटिन्यू करते हैं हमेशा के लिए। ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि एक्सरसाइज हमेशा हर जॉइंट के लिए, हर ब्लीड के लिए बदलती रहती है। आज जो आप एक्सरसाइज सीखे हो मे भी वो एक्सरसाइज अगर रेगुलरली आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है। तो उसके बाद की जो एक्सरसाइज होती है, जो स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज होती है या नेक्स्ट फेज की एक्सरसाइज होती है, वो चेंज हो जाती है। तो उसके लिए हमें, आपको जब ब्लीड नहीं है, आप ब्लीड पूरे अच्छे से, आपका जॉइंट अच्छा हो गया, उसके बाद आपको आपके सेंटर में जाके आपको थेरेपिस्ट को मिल के असेसमेंट करवाना है और दूसरे जो नए टाइप के एक्सरसाइज है आप जो कर रहे हो वो थेरेपिस्ट को बताना है और उसके अलावा आगे के जो कसरत है वो सीखनी है, ना कि वही एक्सरसाइज रिपीट करनी है। अगर वही आप एक्सरसाइज रिपीट करोगे तो आपको ऐसे लगेगा अरे मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे तो इसका कोई बेनिफिट हो भी नहीं रहा है, क्योंकि शायद आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हो या आपको नए एक्सरसाइज की जरूरत है। ठीक है, ये कुछ पट्टे हैं, अगर या इस स्लाइड में आप देख सकते हो, उसका मुड़ी हुई कोनी है, फिर हमने पट्टा लगा के धीरे धीरे हमने उसकी कोनी को सीधा करने की कोशिश की है। ये भी एक ट्रैक्शन है, जब इलियोसोअस ब्लीड होती है तब इस टाइप का ट्रैक्शन लगाया जाता है
क्योंकि इलियोसॉल ब्लीड में काफी हद तक आप देखोगे कि हिप जो आपका नी है और एंकल है, हिप है, वो टेढ़ा हो जाता है। ब्लीड पेन कम हो जाता है, बट वो टेढ़ापन जो है वो सीधा करने के लिए हमें काफी टाइम ट्रैक्शन भी लगाना पड़ता है। ये एक ट्रिपल डिफॉर्मिटी है काफी। अगर एक टारगेट जॉइंट बन गया है नी में और उसमें बार बार ब्लीड आ रही है, तो सिर्फ घुटना बेंड नहीं होता, वो कभी कभी सबलक्सेट भी होता है, नीचे नीचे चला जाता है, उस पे वजन देके चलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उस सिचुएशन में हम ऐसे टाइप के पट्टे भी पेशेंट को देते हैं करेक्शन के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है साइनोवाइटिस। जैसे अभी टारगेट जॉइंट हो गया, आपको पता चल गया है कि इसमें टारगेट जॉइंट है। टारगेट जॉइंट जब रेगुलरली फिर भी उसमें ब्लीड हो रही है, आपके पास प्रोफिलैक्सिस नहीं है, आप सिर्फ ऑन डिमांड फैक्टर ले रहे हो, ऐसे हो सकता है कि उसमें साइनोवाइटिस डेवलप हो। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जॉइंट में साइनोवाइटिस हुई है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर उस जॉइंट में 1 महीने में 2 से ज्यादा बार ब्लीड हो रही है, तो शायद ऐसे हो सकता है कि आपके जॉइंट में साइनोवियम थिकनिंग डेवलप हो रही है। अभी ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये नी जॉइंट है, टिपिकल ऐसे बड़ा सूजा हुआ जॉइंट रहता है। सूजन वैसी रहेगी, शायद ब्लीड सबसाइड हो जाएगी, पेन भी चला जाएगा ब्लीड होने के बाद, बट सूजन वैसी रहती है। तो ये जो सूजन होती है ना, इसको हम साइनोवाइटिस बोलते हैं। पर इसके अंदर साइनोवाइटिस है या नहीं है, ये हमें अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी या एमआरआई से पता चलेगा। केईएम के सेंटर में हमारी एक मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी है जो हर बुधवार को रहती है, जहाँ पे हिमेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स और थेरेपिस्ट स्क्रीनिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, और फिर उनकी स्क्रीनिंग में पता चल जाता है कि साइनोवियम थिकनिंग कितनी है, और उसमें कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है। आइदर हम पेशेंट को, अगर माइल्ड साइनोवाइटिस है तो कभी कभी प्रोफिलैक्सिस पे रखते हैं और एक्सरसाइज देते हैं। अगर ज्यादा है तो हमें उनको इंट्राआर्टिकुलर इट्रियम या लुटेशियम या इंट्राआर्टिकुलर टेट्रासाइक्लिन, ये कुछ इंजेक्शन अवेलेबल है, रेडियो एक्टिव साइनोवेक्टोमी है, वो करनी पड़ती है। उसकी कुछ प्रोसीजर्स है, वो करने के बाद काफी हद तक हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, और उसके बाद पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करके ऑलमोस्ट उस जॉइंट को अच्छी मोबिलिटी दे सकता है। तो साइनोवाइटिस बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि ये टारगेट जॉइंट है या साइनोवाइटिस है, और अगर साइनोवाइटिस है तो उसका इमीडिएट इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर साइनोवाइटिस अर्ली स्टेज में हम नहीं ट्रीट करेंगे तो वो हिम आर्थ्रोपैथी में चला जाता है, और उसके बाद आपके पास बहुत कम ऑप्शंस बच जाते हैं घुटना या आपका कोई भी जॉइंट बचाने के लिए। घुटने में एटलीस्ट अपने पास नी रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है, वो भी लेटर फेज में, बट उसके पहले अगर हम साइनोवाइटिस को कंट्रोल करें या टारगेट जॉइंट को कंट्रोल करें तो आगे वाले सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है। और एक बात कहना चाहूंगी कि काफी पेशेंट्स हमारे सेंटर में आते हैं कि घुटना खराब हुआ है, अभी हमें नी रिप्लेसमेंट करना है। जरूरी नहीं है कि हर एक जॉइंट जो खराब हुआ है उसको नी रिप्लेसमेंट की ही जरूरत हो, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आप आए और इमीडिएटली नी रिप्लेसमेंट हो। देखिए, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उसके कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। अगर आप 20 या 30 साल की उम्र में है और आप घुटने को चेंज करेंगे इतने जल्दी, तो वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एटलीस्ट हीमोफीलिया में तो डेफिनेटली नहीं है। प्लस अगर आप अच्छा, वो जो नी रिप्लेसमेंट आप करने वाले और वो लॉन्ग टर्म चलना चाहिए, आपका जॉइंट, आपको सर्जिकल इंटरवेंशन जो आप करने वाले नी रिप्लेसमेंट की, उसके अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो बहुत जरूरी है कि आपका जो जॉइंट है उसके आसपास के स्नायु बहुत अच्छे हो। अगर आप बहुत नी खराब है, मतलब 100% आपका जॉइंट बहुत ज्यादा खराब है, आपके मसल्स भी बहुत खराब है। अब जो खराब जॉइंट है वो तो आप रिप्लेस कर लेंगे इम्प्लांट डाल के, पर जो आसपास की स्नायु है वो जब तक आप मोबिलाइज नहीं करेंगे, जो इम्प्लांट है नया, उसको वो सपोर्ट नहीं करने वाला। तो आप अच्छी सर्जरी करके भी कोई आपको उससे अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी सर्जन के पास जा रहे हो नी रिप्लेसमेंट के लिए, तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 6 हफ्ता रेगुलर एक्सरसाइज करके जो भी मसल है उसकी स्ट्रेंथ अच्छी लानी है। और एक्सरसाइज कर कर ही स्ट्रेंथ आती है ऐसे नहीं है। कुछ कुछ घुटने आपने देखे रहेंगे बहुत पतले हुए रहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करने से ही ठीक होंगे ऐसे नहीं है। आपको अच्छा डाइट भी करना बहुत जरूरी है, प्रोटीन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। आपका जो जॉइंट है, बोन है, उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी है क्या, ये देखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर आप आपके सर्जन के पास जाइए एंड डिसाइड कीजिए कि आपको रिप्लेसमेंट करनी है या नहीं करनी है।
ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को और हीमोफिलिक्स को पता होने चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम स्कूल के लिए एक लेटर लिखें। आप अपने हेमाटोलॉजिस्ट और जो फिजिशियन है उनके पास से एक लेटर लेना है, जहाँ से आपको, जिसमें मेंशन किया होगा कि आप हीमोफिलिक है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी या फिजिकल पनिशमेंट या अगर एब्सेंटिज्म होता है तो आपको कंसिडर करना है। आप 10वीं में या 12वीं में होंगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम, या अगर आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे सेंटर है तो आपको ग्राउंड फ्लोर के लिए परमिट किया जाए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट 2018 के गैजेट में हीमोफीलिया को कंसिडर किया गया है, तो उसमें जो हीमोफीलिया ए सीवियर है उनको तो डायरेक्टली 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है। हम ये नहीं लेबल करना चाहते कि सारे हीमोफिलिक डिसेबल्ड है, बट अगर उनसे इस चीज के वजह से पेशेंट को बेनिफिट मिल रहा है, कुछ बेनिफिट्स के वजह से अगर उनका आगे का पर्सपेक्टिव अच्छा है, तो डेफिनेटली हर एक ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना चाहिए फॉर देयर एजुकेशन में भी, या फिर देयर स्कूलिंग। जॉइंट केयर और प्रोटेक्शन के बारे में हम इतना बात किए अभी कि पट्टा लगाना चाहिए, कफ लगाओ, बट काफी पेशेंट को या काठी लेके चलो जब इलियोपसोआस ब्लीड है, या जॉइंट को प्रोटेक्ट करना है तो दूसरे हाथ में स्टिक लेके चलना है। बट ये बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा है बच्चों में भी कि अरे पट्टे लगा के जाएंगे तो बहुत लोग हंसते हैं, काठी लेंगे तो अच्छा नहीं लगता, सभी लोग देखेंगे अलग नजर से। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि ये हमारे के लिए है, ठीक है, हमारे जॉइंट्स के लिए है। तो जब ये चीज हमारे खुद के लिए है तो वो करनी चाहिए, ठीक है। हमें दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इट इज फॉर आवर जॉइंट्स। तो इसलिए बच्चों को मैं बोलूंगी कि प्रोटेक्टिव कप्स जो है, हम स्कूल के लिए तो लिख सकते हैं कि आप उनको हाफ पैंट नहीं फुल पैंट के लिए परमिट करो, सो दैट एटलीस्ट वो दिखे नहीं, अगर आपको वैसा स्टिग्मा है तो। काफी टाइम ऐसे हो जाता है कि पेरेंट बच्चों को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते, क्योंकि उनको डर रहता है कि शायद ब्लीड हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है ना, उनकी जो एनर्जी होती है वो कहीं चैनलाइज नहीं होती, फिर वो एक जगह पे बैठते नहीं, बहुत ज्यादा उछल कूद करते रहते हैं। तो फिर उनको कभी कभी ना स्कूल से ऐसे, अरे इनको तो हाइपर एक्टिविटी है, ध्यान नहीं देता है, अटेंशन नहीं है, ऐसे लेबल किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, अटेंशन नहीं दे रहा है, ऐसी कोई है, तो चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक होते हैं काफी जगह पे, वहां पे भी उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। क्योंकि हीमोफीलिया के साथ शायद दूसरी और चीजें हो सकती है, जो कभी कभी हम हीमोफीलिया पे इतने फोकस रहते हैं तो वो सारी चीजें ना पूरी कवर अप हो जाती है, तो हमको वो भी स्क्रीनिंग करना जरूरी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, हर एक चैप्टर्स में वुमेन्स ग्रुप है, यूथ ग्रुप्स है। मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि आप ग्रुप में रहो, क्योंकि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो, आप आपकी स्टोरी सुना के किसी को बता रहे हो कि हाँ मैं भी इससे गया हूँ। एक मदर भी दूसरे मदर को सपोर्ट कर सकती है कि मैंने इनको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आई, मैंने ऐसे ऐसे टैकल किए। तो ये जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं हीमोफीलिया में, वो फैंटास्टिकली वर्क करते हैं। मैंने जितने भी एटलीस्ट हमारे मुंबई चैप्टर्स में मैंने देखे, थाना चैप्टर में देखे, फैंटास्टिक काम करते हैं वो। उसके वजह से इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन आता है कि हमारे जो चैप्टर्स है वो पूरे के पूरे सिर्फ हीमोफिलिक्स ही चला रहे हैं या उनके पेरेंट्स चला रहे हैं। तो इट इज रियली हैट्स ऑफ। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ एजुकेशन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमसे ज्यादा अवेयरनेस वो ज्यादा करते हैं। और मैं जो आज कह रही हूँ, अगर वो एक हीमोफिलिक या हीमोफिलिक की मदर कह रही है, तो आप उनसे ज्यादा रिलेट कर सकते हो। तो इसीलिए ऐसे ग्रुप से जुड़े रहिए, ऐसे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व होंगे और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, तो हर एक चैप्टर और एचएफआई के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है। तो आज के इस वेबिनार में हमने क्या सीखा है कि एक्सरसाइज की है। की मतलब जैसे ताला चाबी होती है ना, तो आपको ब्लीड हो गई, आपने फैक्टर ले लिया कि फैक्टर और ब्लीड के बीच में का जो बाइंडर है, जो ब्रिज है, वो एक्सरसाइज है। आप आपके जॉइंट और मसल्स की हेल्थ को मेंटेन रखोगे जितना ज्यादा, एक आपकी ब्लीड्स कम रहेंगी, दूसरा आप टारगेट जॉइंट साइनोवाइटिस, ये आगे आगे की जो डिफॉर्मिटीज है ना, उससे बच सकते हो। आप एक नॉर्मल, नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, ठीक है। आपकी अगर आपको नेक्स्ट ब्लीड होती भी है तो उसकी जो रिकवरी है ना, वो बहुत ज्यादा तेजी से, हम फंक्शनल रिकवरी हम बोलते हैं, फास्टर हो सकती है। अगर आपके सेंटर में प्रोफिलैक्सिस अवेलेबल है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। शायद सभी को वो अवेलेबल ना हो, बट अगर अवेलेबल है
तो उसके साथ ऐसे नहीं कि प्रोफिलैक्सिस मिल गया मतलब एंड ऑफ द स्टोरी। प्रोफिलैक्सिस पे हो, एम्यूसिजुमैब या हेमलिब्रा पे हो या आईटीआई पे हो, एनी थेरेपी किसी पे भी हो, आपको एक्सरसाइज तो करनी है, क्योंकि ये चीजें आपके सिस्टमिक चीजों को ठीक कर रही है। बट आपके जो मसल और जॉइंट है उसको आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी मेंटेन रखने के लिए। आपके जो नजदीकी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक है, जहाँ पे हिमेटोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिक है, थेरेपिस्ट है, वहां पे रेगुलर स्क्रीनिंग करना जरूरी है। क्योंकि अगर उसमें साइनोवाइटिस डेवलप हो रही है क्या, आपका टारगेट जॉइंट हो रहा है क्या, आपका जॉइंट अभी कैसा है और आगे की क्या एक्सरसाइज करनी है, वो रेगुलर असेसमेंट और रीअसेसमेंट से ही हो सकती है। और उसके साथ हर 6 महीने में आपको इनिबिटर स्क्रीनिंग, अगर आप रेगुलरली फैक्टर ले रहे हो तो हर 6 महीने में इनिबिटर स्क्रीनिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। ये है हमारे डे केयर के बच्चे सारे, और राइट साइड पे आपको दिख रहा है ये हमारी कॉम्प्रिहेंसिव केयर टीम है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिपिन सर, हमारे डेंटिस्ट है, नंदाबाई और श्वेतल मैम है, मैं हूँ और चंद्रकला मैडम है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट कीर्ति मैम। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस के लिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, कुछ सवाल हो, तो आप ये चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, और नहीं तो हमसे बोल के आप हाँ, एक सवाल आया है कि मेरा टारगेट जॉइंट नी है और मेरा वेट 80 किलोग्राम्स है, चलने में मुझे प्रॉब्लम है। तो आप चाहे तो अनम्यूट करके आपका सवाल कीर्ति मैम से पूछ सकते हो। तो मुंबई और ताने चैप्टर का यूथ ग्रुप एक्टिवली आपके लिए हेल्प करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर्स कुछ पूछना है तो वो कलेक्ट करके आपका क्वेश्चंस हमको दे रहे हैं। तो Ashwini is asking whether there are any daily regular exercises to be done. यस, देर आर मेनी रूटीन एक्सरसाइज। मतलब अगर जरूरी नहीं है कि आपको टारगेट जॉइंट फॉर्म ही हो गया है या कोई स्पेसिफिक जॉइंट टारगेट हो चुका है, ऐसे जरूरी नहीं है। अगर आपका टारगेट जॉइंट फॉर्म नहीं भी हुआ है फिर भी आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है। बट वो कौन से एक्सरसाइज रहेंगे वो आपके जो सेंटर में आपके जो थेरेपिस्ट होंगे उनसे आप असेसमेंट करवा के ही आपके जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट करो। मतलब काफी पेशेंट, ये शायद आप यूथ ग्रुप में किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि मैं जिम जा सकता हूँ क्या, मुझे तो कोई टारगेट जॉइंट नहीं है, या टारगेट जॉइंट था और अब मैं ऑल ओके हूँ तो अब मैं जिम जा सकता हूँ क्या। तो जिम जाने के लिए या स्विमिंग या साइकिलिंग करने से पहले भी मैं सभी को कहूंगी कि आप एक आपका HGHS, हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट है HGHS मतलब हीमोफीलिया जॉइंट हेल्थ स्कोर, उससे हम आपका जो टारगेट जो स्पेसिफिक 3 जॉइंट है उसकी हेल्थ कैसी है, आपके मसल्स इंटीग्रिटी कैसे है, आप उस एक्टिविटी मतलब जैसे स्विमिंग हो गई या साइकिलिंग या जिम फॉर दैट मैनर, मैं ट्रेडमिल कर सकता हूँ क्या, अगर मैं रेगुलर वॉक के लिए जाऊँ तो मैं कितना मिनट वॉक करूँ। तो ये सारे जो चीजें है ना उसके लिए आपका असेसमेंट थेरेपिस्ट से करवाना जरूरी है। अगर आप असेसमेंट करवाते हो तो वो पहले क्या करेंगे, असेसमेंट से उसको पता चल जाएगा कि कौन से मसल वीक है, कौन सा जॉइंट वीक है। तो पहले वो उस पे आपको काम कराएंगे, और वो अच्छे से होने के बाद, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने के बाद आप उस एक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी हम ना ब्लाइंडली कुछ भी, मतलब काफी टाइम ये हो जाता है कि आप गूगल करते हो, विकिपीडिया देख लेते हो या कोई यूट्यूब चैनल देख लेते हो कि हाँ ये तो कॉमन एक्सरसाइज है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। बट क्या हो जाता है ना, वो सही तरीके से नहीं होती है। सिंपल एक्सरसाइज है, एल्बो अंदर और बाहर, ठीक है, ये सिंपल एक्सरसाइज है, ये किसी भी यूट्यूब चैनल में आपको दिख जाएगी, गूगल पे कहीं पे भी दिख जाएगी। बट आपका ट्राइसेप्स इन्वॉल्व है, बाइसेप्स इन्वॉल्व है, आपका एल्बो जॉइंट में पहले ब्लीड हुई है कि नहीं, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, आपने ये 10 बार कर ली पर उससे उससे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा ना। आपको फिर स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है कि नहीं, मुझे वेट लेना है कि नहीं, अगर मुझे डंबल लेना है तो आधे किलो का लेना है या पौना किलो का लेना है, ये कौन बताएगा। तो ये आपको असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। विदाउट असेसमेंट भी आप कर सकते हो, बट उसमें काफी टाइम ऐसा हमने देखा है कि पेशेंट जिम चला गया, एक ही हफ्ते में फैक्टर लेने के लिए आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमने ये भी देखा है कि पेशेंट रेगुलरली जिम जाते हैं एंड देन
उनको शायद टारगेट जॉइंट बाद में फॉर्म भी नहीं होते। बट सभी चीजें करने के लिए आपको आपके थेरेपिस्ट से, हेमाटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। So thank you, madam. Abhi we have Snehanjali from Cuttack chapter. She has raised her hand. Snehanjali जी, आप आपका माइक को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हो। हाय मैम, हेलो। मेरा नाम मनोज है, मैं स्नेहांजलि का हस्बैंड हूँ एंड मेरा बेटा 10 साल का है। तो 2 साल से उसका ब्लीड नहीं हुआ है, लेकिन पहले से क्या हुआ, फैक्टर नहीं था, उसका राइट एंगल कंटिन्यूस ब्लीड हो रहा था एंड हम लोग डॉक्टर को दिखाए एंड अभी तो फिजियोथेरेपिस्ट दिखाए, तो उन वो एंड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को भी दिखाए। वो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सिनोसिस क्रिएट हुआ है, ठीक है, एंड ये थोड़ा मूव हो गए, एंकल थोड़ा मूव हो गए एंड जूता वो सिंस लास्ट 6 मंथ ही वाज वेयरिंग ए सर्जिकल शू, ठीक है। आगे हमको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा एंड हाउ वी कैन मेक दैट करेक्ट, दैट्स, कैन यू प्लीज हेल्प हियर? अगर आपने एमआरआई किया और उसमें इनिशियल साइनोवाइटिस दिखा रहा है, एमआरआई किया है ना आपने? हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर एमआरआई किया है और रेगुलर माइल्ड साइनोवाइटिस बता रहा है, तो आइडियली अगर उसको 10 साल का भी है, 10 साल का है मतलब तो एक्टिव है, स्कूल भी जा रहा है ना? हाँ जी। काफी active है। और एंकल जॉइंट है, मतलब वेट बेरिंग जॉइंट है वो, ठीक है। हाँ जी। एल्बो हाँ हाँ बेरिंग जॉइंट मतलब कैसे, जैसे अगर एल्बो जॉइंट हम पकड़े और मुझे उसमें रेस्ट देनी है, तो मैं उस हाथ का इस्तेमाल नहीं करूंगी, ठीक है। बट एंकल और नी जॉइंट का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हमें अगर चलना है तो उसी पे वजन देके चलना, और अगर मुझे उसमें ज्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं क्या करूंगी, दूसरे वाले एल्बो में या नी में वजन देके चलूंगी। अब ये बच्चा एक्टिव है, और अगर आपके सेंटर में प्रोफिलैक्सिस का मैनेजमेंट हो सकता है, तो आइडियली तो आप उसको प्रोफिलैक्सिस रख के रेगुलर एक्सरसाइज कराना जरूरी है विथ गुड स्पोर्ट शूज। बट आपको हाँ वापस हाँ। 6 मंथ्स के बाद वापस एक एमआरआई करके, क्योंकि अगर इस 6 महीने में आप बोल रहे हो कि 2 महीने में उसको ब्लीड नहीं हुआ है ना, 2 महीने 2 साल, नहीं, 2 साल से उसको ब्लीड नहीं हुआ है। 2 साल में ब्लीड नहीं हुआ, दैट इज वेरी गुड। बट अगर ये माइल्ड साइनोवाइटिस में आगे जाके ब्लीड हो रही है, तो शायद ये साइनोवियम बढ़ सकता है, तो वो हमको कंट्रोल करना जरूरी पड़ेगा। प्लस अगर आप बोल रहे हो कि उसका एंकल जॉइंट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो उसका करेक्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर टेढ़ा है और उस टेढ़े एंकल पे ही वो वजन देके चल रहा है, तो अभी नहीं, शायद आगे 6 महीने बाद, साल भर बाद उसमें और जो चेंजेस है ना, डीजनरेशन वो दिखाई देते हैं आपको। तो इसके लिए हाँ आपको जी। मेंटेन रखनी है। अगर प्रोफिलैक्सिस अवेलेबल है तो वो उसका आपको फायदा लेना चाहिए। ब्लीड नहीं हो रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट अगर साइनोवाइटिस डेवलप हुआ है, तो आपको रेगुलर उसको एक्सरसाइज पे रखना पड़ेगा, मोबिलिटी प्लस स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे रखना पड़ेगा। और आई डोंट नो, मतलब आप किसी शूज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज्यादा हैवी ऑर्थोपेडिक शूज है तो वो आपको नहीं पहनना चाहिए। आप रेगुलर स्पोर्ट शूज भी पहनेंगे विद गुड सपोर्ट, सॉफ्ट सोल, मोर देन इनफ है। ठीक है मैम, ठीक है। सो कैन आई ट्रैवल टू मुंबई, एक बार मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ, ये हो सकता है क्या पॉसिबल? या आप मुंबई में हमारी मंडे और थर्सडे को ओपीडी होती है हेमेटोलॉजी के, और हाँ। उस डे केयर सेंटर में भी हम उसी दिन हम उनको देख सकते हैं। हम्म। ये ठीक तो है मैं मैम, ठीक है फिर। हम्म। सभी पेशेंट को बोलूंगी कि किसी को भी अगर स्क्रीनिंग करवानी है ऑल ओवर इंडिया से अगर आप आना चाहते हैं, तो हमारी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी भी होती है वेनसडे को, और मंडे और थर्सडे को हमारी रेगुलर हिमेटोलॉजी ओपीडी होती है। तो वहां पे आप आके दिखा सकते हो। हमारे यहाँ पे इनिबिटर स्क्रीनिंग भी होता है, और आपके जॉइंट और मसल की क्लिनिक भी है, जहाँ पे हम पेशेंट के जॉइंट और मसल को एसेस करते हैं और वन टाइम एक्सरसाइज बताते हैं। उसके बाद हम, आप अगर 6 महीने में भी आएंगे फॉलोअप के लिए, तो आपको आगे आगे की प्रोटोकॉल समझाया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ फोन पे बात करने से इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो कि एक्चुअल कैसा है। जब तक हम जॉइंट को नहीं देखेंगे तो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस मैम, एक्चुअली मेरा बेटा पहले फैक्टर 8 था, उसके बाद उसका इनहिबिटर क्रिएट हुआ, नोवोसेमिनोर ले रहा था, अभी वो हेमलिब्रा ले रहा था। सिंस लास्ट 2 years देयर वाज नो ब्लीड एट ऑल, बट थिंग इज ये जो उसको करेक्ट करना है राइट एंकल को, इसीलिए थोड़ा आपका गाइडेंस एंड हेल्प चाहिए, सो दैट मैं प्लान करता हूँ आपको मिलने के लिए एंड आई विल बी देयर एट मुंबई। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर दिस।
ओपीडी में कब आना है, ओपीडी कहाँ पे होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हीमोफीलिया सोसाइटी मुंबई चैप्टर से मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ, थैंक Yes, ma'am. There is one question about a child who has inhibitors and is 3 years old. So, are there any exercises that can be done by a 3-year-old? ओके, एज डजंट मैटर। ओके, आप 3 इयर्स के हो, 1 ईयर के हो, या 10 या एनीथिंग। और इनिबिटर भी अगर होगा, इनिबिटर है तो बेसिकली ना ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट बदलती है। इनिबिटर है तो नोवा 7 लो हेमलिब्रा ये सारी चीजें में जाती है, फैक्टर लेते हैं। दैट डजंट, एक्सरसाइज बदलती नहीं है। ओके, एक्सरसाइज वही रहती है। अब आप स्पेसिफिकली 3 साल के बच्चे के बारे में बात करें। 3 साल का बच्चे के मूवमेंट्स काफी एक्टिव होते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, जब बच्चा ग्रो होता है, he goes above beyond 6 to 7 years and उसकी मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम होने लगती है। जब वो टीनेज में चला जाता है और फिर मोबिलिटी धीरे धीरे कम होती है ना, तब एक्सरसाइज स्पेसिफिकली उसको करवानी पड़ती है। अब 3 साल के बच्चे को आप बोलोगे कि जॉइंट ऐसे अप एंड डाउन करो, पैर को ऊपर नीचे करो, कोई 3 साल का बच्चा वो एक्सरसाइज नहीं करने वाला। इसीलिए यहाँ पे पेरेंट का बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आपको सारी जो एक्सरसाइजेस है, सारे जॉइंट मूवमेंट जो है, वो आपको बच्चे से खेल खेल में करवा के लेने पड़ेंगे। कि आपने बॉल दे दिया, उसको आपको लगाना है, आपको बच्चे के साथ बॉल थ्रोइंग खेलनी है, ये दो चीजें होंगी। एक तो जॉइंट मोबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, और सेकेंडली आप जो अदर भेज रहे हो बाहर खेलने के लिए, डर से कि शायद उसको ब्लीड हो जाए, तो उसको लग रहा है कि ठीक है पेरेंट्स मेरे में इन्वॉल्व है, तो उसको शायद उतना बाहर जाने की चाह नहीं भी होगी। ठीक है, प्लस अगर जॉइंट इंटीग्रिटी अच्छे से मेंटेन है, ब्लीड्स नहीं हो रही है, तो उसको आप ट्राइसिकल दे सकते हो, साइकिलिंग भी अंडर सुपरविजन, मतलब एकदम रेस जैसा चला रहा है ऐसा नहीं करना है, साइकिलिंग अंडर सुपरविजन दे सकते हो। अच्छे से हेड गियर पहनो, साइकिलिंग के कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स आते हैं, उसके साथ अगर वो साइकिलिंग कर रहा है अच्छा है। प्लस अगर वो 6 साल के ऊपर का बच्चा है, उसको सब अगर और आपके एरिया में पॉसिबल है, आपको फिजिबल है, तो स्विमिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। स्विमिंग में एक तो एंड्योरेंस आपका बढ़ता है, सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्विमिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमने देखा है कि जो बच्चे बचपन से स्विमिंग करते हैं उनको बहुत कम ब्लीड्स होती है। Thank you, ma'am. So there are a few questions about what is to be done for ankle pain and swelling and pain in ankles. Sorry. जैसे मैंने बोला ना, प्राइस कोई भी ब्लीड हो, कोई भी ब्लीड होती है किसी भी जॉइंट में, किसी भी मसल में, प्राइस प्रोटोकॉल ये आपको फॉलो करना है। पहले तो प्रिवेंटिव, अभी प्रिवेंशन तो चला गया क्योंकि अभी तो आपको ब्लीड हो गई है। सबसे पहला आता है रेस्ट। रेस्ट के लिए जो मैंने पिक्चर में एक पट्टा बताया था, वो पट्टे में रखो आप उसको 48 आवर्स विथ क्रेप बैंडेज, कंप्रेशन में रखो। फिर जैसे पेन धीरे धीरे कम हो जाती है, ग्रेजुअल एंकल मूवमेंट स्टार्ट करो। इसमें एंकल के लिए ना आइसिंग करने के लिए और एक अच्छा तरीका है, मतलब काफी टाइम में पेरेंट्स से सुनती हूँ मदर से कि अरे वो आइसिंग करने ही नहीं देता है, आइस पैक रखेंगे तो वो रोने लगता है और वो फेंक देता है, करता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो ना, अगर छोटे बच्चे हैं तो आप एक टब लो, बकेट लो, नॉर्मल पानी डालो, उसमें कुछ बर्फ बर्फ डाल दो, क्यूब्स, आइस क्यूब्स, ठीक है। उसको आप, उसका पैर हाथ, या अगर उसको आप उसमें बिठा सकते हो, थोड़ा एकदम बहुत ज्यादा आइस नहीं डालना है ना, तो वो वहां उसमें भी नहीं बैठेगा। उसके टॉयज डाल दो, उसके साथ खेलो उसमें 10 मिनट, मोर देन इनफ। अगर एंकल भी उसमें डाल के आप उसको सिर्फ स्प्लैशिंग करने के लिए बोल रहे हो ना, ही विल ऑल्सो एंजॉय। उसको लगेगा नहीं कि ये अलग से कुछ एक्सरसाइज है, कुछ करवा रही है मुझे, तो एक्सरसाइज भी हो जाएगा, आइसिंग भी हो जाएगी उसी में, एंड द चाइल्ड विल ऑल्सो बी हैप्पी। हमें कोई भी चीजें बच्चों को रुला रुला के कोई भी चीजें नहीं करवानी है। एक्सरसाइज ऑल्सो इट शुड बी फन फॉर द पेशेंट। ओके, तो बच्चों के लिए तो एक्सरसाइज कभी भी फन नहीं होता है, तो हमको मदर को बहुत इनोवेटिव होके वो कैसे फन में कर सकते हैं वो हमको सोचना है। उनकी क्या एक्टिविटी है, उनको क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से वो लेके उस मूवमेंट में हम कैसे कर सकते हैं वो हमको सोचना है, और उस डायरेक्शन में हमें एक्सरसाइज करनी है। लीला मैम विशाखापट्टनम से पूछ रही है, जॉइंट और मसल्स के लिए कोई
जनरल एक्सरसाइज है ही क्या उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जॉइंट्स एंड मसल्स? जॉइंट एंड मसल्स जनरल में वही मैं मतलब बार बार वही आपको बोल रही हूँ। आप कोई भी एनी थेरेपिस्ट अराउंड, मे इट बी फिजियोथेरेपिस्ट और एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नियर बाय यू कैन कंसल्ट देम फर्स्ट जो पेयर ऑफ एक्सरसाइज आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, मैं तो आपको यही से बता दूंगी कि ऐसे करो, बट एक्सरसाइज ना टेलर मेड होती है। टेलर मेड मतलब कस्टमाइज होती है। जो आपके बच्चों के लिए एक्सरसाइज मैं बताऊंगी वो दूसरे बच्चे के लिए ही कॉमन रहेंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके जॉइंट्स अलग है, उस भले ही दोनों बच्चे सेम है, दोनों बच्चों को कभी ब्लीड नहीं हुई, तो शायद एक्सरसाइज थोड़ी अलग हो सकती है। तो इसके लिए मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि आप स्क्रीनिंग करो, आप देखो कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। यहाँ से मैं आपको बता दूंगी हाँ चलो ये 10 बार करना, बट शायद वो आपके बच्चे के लिए सूटेबल नहीं है। शायद आपके बच्चे का मसल्स इतना वीक हो चुका है कि वो स्ट्रॉन्ग भी ना कर पाए। तो वो असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। आप असेस करो एंड देन वी स्टार्ट bunch of exercises and you go very slow। आपको हमेशा याद रखना है बैक ऑफ द माइंड कि हम नॉर्मल जैसे पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं दे सकते। आज मैं 5 काउंट कर रही हूँ, कल 6 करूंगी, परसों 10 करूंगी, एक साथ में कोई एक्सरसाइज नहीं होगी। 10 काउंट आप एकदम से करने जाओगे एंड यू विल लैंड अप इन ब्लीड। फिर आपको ऐसा लगेगा अरे एक्सरसाइज करने की वजह से ब्लीड हो रही है तो मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करनी। तो ये आपको दिमाग में अच्छे पक्का एकदम रखना है कि गो वेरी स्लो। Thank you. So there are two questions, ma'am, specific questions. One is my kneecap stays hot, but there are no signs like reddish color or blackish color. It just give me pain when I sit for a long time and when I stand up. That's it's like a friction of seconds, like 4 to 5 seconds. Is this normal or is it a problem? Good. This is a very good question. Thank you because I skipped this kneecap thing from my mind। मेरे स्लाइड में वो आया नहीं है। नी कैप बहुत लोग, नी कैप उनका मतलब फेवरेट, मतलब वो ऑर्नामेंट हो गया है। गहना होता है ना, हम पहन लेते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, गले का पहनते हैं, वैसे नी कैप पहन लेते हैं। मोस्टली एडल्ट्स, बच्चे तो इतना नहीं पहनेंगे बट एडल्ट्स पहनते हैं। बंद करो पहनना नी कैप। अगर आप देखोगे, आप नी कैप जिस घुटने में पहनते हो उस थाई का जो गर्द है और नॉर्मल थाई का गर्द है, मतलब आपका पैर है ना पूरा पतला हो चुका है। नी कैप पूरा पूरा दिन पहनना ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। आपको बोला जाता है नी कैप पहनो, पर कब पहनना है, कितना टाइम पहनना है, कब नहीं पहनना है, वो कोई बताएगा नहीं। सबसे पहले तो एक्यूट ब्लीड में नी कैप नहीं पहननी है। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप नी कैप पहन रहे हो, आपको किसी ने सजेस्ट किया है, किसी भी डॉक्टर ने किया होगा, तो वो नी कैप सिर्फ और सिर्फ आप जब बाहर जाते हो, जब आप फुटवेयर पहनते हो ना, बाहर जाते हो, आप चप्पल पहनते हो, तभी ही नी कैप पहनना है। फिर आप एक जगह पे पहुंच गए, समझो आप ऑफिस पहुंच गए, आपको बैठ के इमीडिएटली नी कैप निकालनी है। आपको दिन भर नी कैप रखनी ही नहीं है। ये आप एकदम 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 अच्छे से दिमाग में बिठा लो। नी कैप पूरे दिन भर पहनने का गहना है ही नहीं, और उससे नुकसान जरूर होगा, फायदा नहीं होगा फिर ज्यादा। हेलो Well, मैम। thanks a lot. Yeah. हेलो मैम। Yeah, आप पूछ सकते हो। You are audible. Please continue your question. मैम, मेरे हस्बैंड है हीमोफिलिक, एज है उनकी 46 ईयर्स ओल्ड, और मैम उनका एक नी रिप्लेसमेंट हो चुका है, और मैम हिप जॉइंट भी एक रिप्लेसमेंट हो चुका है। तो मैम ब्लीडिंग उनको प्रोफ्लेक्सिस पे है, मतलब हफ्ते में 3 दिन लगता है उनको फैक्टर। मैम मोस्टली ब्लीड हो ही जाता है, और एक्सरसाइज वो इस वजह से कर नहीं पाते हैं। तो मैम ऐसे में क्या करें, मतलब? नहीं, मतलब जिस जॉइंट में नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट हुआ उसी में ब्लीड हो रही है? मैम उसमें भी हो जाता है कभी भी। उसमें भी हो रही है और दूसरी जॉइंट में भी हो रही है? जी मैम, उसमें भी होता है, उसमें ज्यादा होता है, रिप्लेसमेंट वाले में कम होता है। अच्छा देखो, एक तो मतलब अगेन आई एम सेइंग, रिपीटिंग दिस अगेन, कि पेशेंट को तो हमने देखा हुआ नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट करवाया, तब उसके आसपास वाले जॉइंट्स या मसल्स शायद वीक थे, तो वो तो आपके जॉइंट को अभी, इम्प्लांट को अभी अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है।
अगर रिपीटेड प्रोफाइलैक्सिस के बावजूद भी अगर रिपीटेड ब्लीड हो रही है तो आपको दो लोगों को मिलना है। एक तो आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन जिसने सर्जरी करवाई, दूसरे हिमेटोलॉजिस्ट को मिलना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर प्रोफाइलैक्सिस के बावजूद भी ब्लीड हो रही है, मतलब शायद, और आपने रिप्लेसमेंट के लिए बहुत सारा फैक्टर भी यूज किया होगा, तो शायद आपको इनिबिटर टेस्टिंग अभी करवानी पड़ेगी कि आपको फैक्टर इफेक्ट नहीं हो रहा है, या जो डोज आपको दिए गए हैं प्रोफाइलैक्सिस के वो शायद आपको कम पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रोफाइलैक्सिस के बावजूद ब्लीड होना, दिस इज समथिंग अनयूजुअल। तो एक तो आपके डोज कम पड़ रहे हैं, या फिर आपके इनिबिटर अभी टेस्टिंग करवानी जरूरी है, शायद इनिबिटर लेवल्स बढ़ गए होंगे। यस मैम। और मैम क्या मैम डाइट में हम कुछ इन्वॉल्व कर सकते हैं वैसा? नहीं, डायरेक्ट ब्लीड्स का तो कोई ये नहीं है। मैं सभी पेशेंट को यही कहूंगी कि डाइट मतलब स्पेसिफिक कुछ खाना है, आप नॉर्मल हेल्दी डाइट खाओ, सिर्फ आपको आपका वजन कंट्रोल रखना है। जी। चाहे जो भी खाओ, नॉर्मल जो आपके लिए अच्छा है, जो आप खाना चाहते हो, एवरीथिंग यू कैन ईट, बट उससे आपका वेट गेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि फैक्टर वजन के हिसाब से दिया जाता है, जितना ज्यादा यस मैम। लेंगे उतना ज्यादा अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, और यस मैम। बाकी चीजें भी आती है फिर उसमें, इसके लिए। हेलो, ओके मैम, थैंक यू। I do have a question. My husband has inhibitors, severe hemophilia, and his both knees are affected with arthropathy. Now his main problem times he loses while walking, and there is a tendency that he doesn't fall back, but immediately, he is able to control himself. So can this be corrected by exercise, or will that need surgery? Again, thank you so much for this question, because there is one very important point which is called proprioceptive training. अब क्या हो जाता है ना कि जब एक स्पेसिफिक जॉइंट में, ज्यादा करके नी और एंकल में बार बार ब्लीड होती है, तो जॉइंट के अंदर कुछ एक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन क्या काम करता है कि अगर मैं जमीन पे खड़ी हूँ, तो उसका जो एहसास है कि मेरे दोनों पैर जमीन पे है, घुटना सीधा है और मैं स्ट्रेट खड़ी हूँ, ये जो सेंसेशन है ये प्रोप्रियोसेप्शन देता है। अब हमारे नी में या एंकल में जब नी में बार बार ब्लीड होती है, तब ये जो रिसेप्टर्स है ना वो कम कम होते जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी कम कम हो जाती है। तो उसके लिए अलग से थेरेपी में प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग करके एक सेक्शन होता है। एक तो हो गया तुम्हारा जॉइंट मोबिलिटी, एक हो गया तुम्हारा स्ट्रेंथनिंग मतलब मसल को स्ट्रेंथ करना, और तीसरी होती है प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस। तो ये जब आप बेसलाइन एक्सरसाइज करते हो उसके बाद का जो स्टेज होता है एक्सरसाइज का, उसमें प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ बैलेंस। तो जहां पे भी आप थेरेपी के लिए जा रहे हो रेगुलरली, उनको आपको बोलना है कि अगर स्ट्रेंथनिंग अच्छे से हो गई है तो नेक्स्ट स्टेज जो प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस की है वो आप इनिशिएट कर सकते हो। उससे ये आपका जो प्रॉब्लम है बैलेंस का या सेंसरी जो कम हो रहा है ना, वो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ वेरी वेल। मतलब देर आर सो मेनी पेशेंट हमारे सेंटर में जिनको इमीडिएटली अभी अर्ली 30s में नी रिप्लेसमेंट बोला गया था, बट दे आर स्टिल डूइंग गुड, दे आर ऑन एक्सरसाइज एंड दे आर मैनेजिंग इट। सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनकी सर्जरी उनको करनी ही नहीं पड़ेगी, सर्जरी आगे जाके कभी ना कभी करनी है, पर जितना हम उसको आगे पुश कर सकते हैं, मे बी 5 साल मे बी 10 साल, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। जितना हम हमारे नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आप एकदम ही व्हीलचेयर बाउंड हो गए, आप चल फिर ही नहीं सकते हो, इतना पेन है कि बेरेबल नहीं है, डेफिनेटली उस सिचुएशन में हमको नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। बट थोड़ा सा पेन है, थोड़ा चलने में दिक्कत है, तो शायद पहले आप एसेस करके प्रोफाइलैक्सिस पे शायद रह के एक्सरसाइज करके आप देखो, अगर उससे आपको फर्क पड़ रहा है तो हर एक को नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ना पड़े, या फिर शायद हम उसको पोस्टपोन कर सकें। Thanks a lot, ma'am. So, as the time is over, we will not be taking further questions. नमस्ते मैडम, मेरा बेटा हीमोफीलिया से है तो वो सारे दिन हाथ हिलाता है और उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, तो ये क्या हीमोफीलिया में आता है क्या? हाँ, ये देखो, ये हीमोफीलिया से रिलेटेड शायद ना हो, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हीमोफीलिया के साथ कुछ चीजें चलती है, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, ऑटिज्म ट्रायड्स हो सकते हैं। ये चीजें है ना, आपको एक चाइल्ड गाइडेंस डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन जो होता है
उसके पास जाके आपको ये स्क्रीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्लैपिंग कर रहा है, एक जगह पे बैठ नहीं रहा है, स्टडीज में फोकस नहीं कर रहा है, ये हीमोफीलिया का पार्ट नहीं है। ये कुछ अलग चीज भी हो सकती है, तो आपको उसके लिए उसका तपास करवा के डायग्नोज करना पड़ेगा। उसके लिए थोड़ी अलग ट्रीटमेंट रहती है। पर ये आपने गुड ये पूछा है, तो आपको स्क्रीनिंग करनी इसके लिए काफी जरूरी होगा। ये हीमोफीलिया का पार्ट नहीं है। हेलो मैम, मैं दीपक चौहान हूँ। मैं एक्चुअली मैंने ना 2022 से मैंने फैक्टर वगैरह लिया नहीं है, और अभी इनहिबिटर चेक करा है तो पॉजिटिव निकला है, इनहिबिटर पॉजिटिव है। और मुझे ना गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैं, तो गवर्नमेंट में ना मुझे फिटनेस मांगा है। तो मैम ने लिख के दिया था कि लाइट वेट का, और लाइट वेट का काम नहीं है यहाँ हमारे यहाँ पे। तो मुझे फिटनेस मिल सकता है क्या? और आप कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं रहता हूँ दादर में रहता हूँ मैम। मैं बीच में आपको मिला भी था 79 में। और आपका काम क्या है? मैं मोटर लोडर में हूँ। एक्चुअली में मोटर लोडर में क्या रहता है मैम, सिर्फ गाड़ी में काम करना पड़ता है। अगर आपका काम थोड़ा बहुत हैवी होगा, और अगर आपको हाँ गवर्नमेंट रेगुलरली प्रोफाइलैक्सिस मिल रहा है, हाँ और आप रेगुलर एक्सरसाइज करके मसल मेंटेन भी है आपका, तो हाँ। आपको वो काम में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आइडियली। तो मैम तो आपको लगेगा एक्चुअली में मुझे ना फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है। तो मैम ने लाइटली वेट लिख के दिया ना, तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो फिर आपको एक बार ओपीडी में आके ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रोफाइलैक्सिस पे है और काम डुएबल है तो शायद आपको मिल सकता है, पर ये इसके लिए आपको मंडे या थर्सडे की ओपीडी में आके चंद्रकला मैडम से ही बात करनी होती ओके, है। थैंक यू मैम। तो अगर ठीक है, अगर थैंक यू मैम। आपको सवाल है तो प्लीज मैडम सपोर्ट mofilia.in में लिखिए। अभी हम सवाल नहीं ले सकते। आपका जो भी सवाल हो हम कीर्ति मैम को फॉरवर्ड करेंगे और आपको उसका रिप्लाई भी दे देंगे। support@hemophilia.in चैट में हमने वो ईमेल आईडी डाला है। अभी हम बुलाएंगे, हमारे साथ है HFI के 3 EC मेंबर्स हैं, उनको थोड़े शब्द बोलेंगे। मैं अभी बुलाऊंगी समर सिंह जी को। समर सिंह जी 2 शब्द बोलिए प्लीज। तो संतोष जायसवाल जी EC मेंबर रांची से है। हेलो 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 हाँ समर एवरीबॉडी। सिंह। हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन है मुंबई चैप्टर के लिए और HFI के लिए और सभी हेमोफिली के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। अभी हम बुलाएंगे संतोष जायसवाल जी EC मेंबर हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया। नमस्कार सभी को। प्रीति मैम को मैंने काफी वर्षों के बाद मैं औरंगाबाद टीम कैंप में मिला था उनसे। उसके बाद अभी मैं मिल रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ वेबिनार मीटिंग्स में। ये तो पहले से इतने वर्षों से हेमोफीलिया के लिए इतना अच्छा कर रही थी। आज इनका जो मैंने लेक्चर सुना, मुझे लगा कि हम बहुत कुछ मिस कर रहे थे। इन्होंने श्रेणीवार जो हेमोफीलिया के बारे में कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, कब डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, किस प्रॉब्लम में कब क्या करना चाहिए, विद इन हिप रिप्लेसमेंट में के बारे में, नी रिप्लेसमेंट के बारे में बताया कब करना चाहिए। ये काफी जानकारी युक्त था। इसके लिए मैं कीर्ति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अपने श्रोतागण को भी धन्यवाद देता हूँ कि इतनी अच्छी संख्या काफी दिनों के बाद लोग पार्टिसिपेट किए। 98-99% हैं। शायद और भी लोग चाह रहे होंगे जुड़ना, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे होंगे। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और इस वेबिनार को प्रिजर्व करके यूट्यूब में डाला जाए, मैं HFI को बोलता हूँ। रामू जी हैं, सभी को मेरा मेरा नमस्कार। थैंक यू संतोष जी। अब हम बुलाएंगे नटराज को EC मेंबर HFI का 2 शब्द बोलने के लिए। हेलो नटराज, आर यू देयर? I know I request also after Nataraj's speech, we'll take a picture of everyone with the video on. Okay.
think Natraj is on mute. Wait, maybe we can take the photograph now. So yeah. सारे logos. You are on mute, ma'am. I cannot hear. सभी से रिक्वेस्ट है, आपका वीडियो ऑन कीजिए, हम फोटो निकाल रहे हैं, प्लीज। थैंक यू। Okay. So हम फिर से बुलाएंगे EC मेंबर नटराज को 2 शब्द बोलने के लिए। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स देंगे विमेंस ग्रुप ईस्ट जोन रीजनल कोऑर्डिनेटर मुक्ता जायसवाल। ओके मुक्ता जी, आप वोट ऑफ थैंक्स डिलीवर कर सकते। हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत खुशी हुई कि कीर्ति पाटिल मैम बहुत ही अच्छा सेशन बोली और इतने अच्छे तरीके से हिंदी भाषा में सभी को समझाई। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे वुमेन्स ग्रुप के प्रोग्राम में वेबिनार में शामिल होकर के सभी को इतने सरल भाषा में समझाई। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। थोड़ी बात कि मैं उनको बहुत दिन के बाद आज उनको देखी। उनसे पहले मैं मिल चुकी थी कैंप में, तो 2-3 दिन हमारे कैंप में बच्चों के साथ रही थी। बहुत अच्छा लगा था मुझे और आज मैं काफी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति मैम। और इस वेबिनार में हमारे अध्यक्ष महोदय HFI के जो आए हुए हैं उन्हें भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ। BPD रामू जी को भी मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और इस वेबिनार में हमारी वुमेन्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदिरा मैम है, जो बहुत ही इस टॉपिक को चुन करके इतने महिलाओं के बच्चों के लिए फायदेमंद रहे। उस टॉपिक को इंदिरा मैम ने बहुत अच्छे सेलेक्ट कर करके इस टॉपिक को रखा। मैं इंदिरा मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और हमारे जितने इसी मेंबर हैं इस वेबिनार में शामिल हुए हैं उन्हें भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट हैं वुमेन्स ग्रुप के एंड जितने प्रतिभागी हमारे सारे इंडिया से जुड़े हुए हैं उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मैम। थैंक यू। सो हम एंड करते हैं अभी सेशन। थैंक यू ऑल। Thank you all. Thank you everyone for joining. Thank you Kirti madam Thank you again. मैम। It was a very Thank you, very madam.